Hello students, welcome to the fourth lecture of chapter electric charge and field. Today we are going to discuss some more numericals on electrostatic force, and after that we are going to study what is electric field. Then we will study how to find out the electric field due to a point charge. So without wasting any time, let's start. Okay students, so ये हमारे सामने आज का पहला सवाल. Two charges each equal to small q are kept at x is equals to a and x is equals to minus a on the x-axis. A particle of mass m and charge q0 where q0 is equal to negative q by 2 is placed at the origin. If a charge q0 is given a small displacement along y-axis, the net force acting on the particle is proportional to whether it is y, minus y, 1 by y or minus 1 by y. So this is the question from JEE Mains 2013. So very interesting and very easy question students. So let's start. तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग देख सकते हो Q दोनों Q चार्ज जो हैं वो x इज इक्वल टू प्लस है और x इज इक्वल टू माइनस ए के ऊपर प्लेस्ड है. ये रहा है आपका Q चार्ज और ये रहा दूसरा Q चार्ज. अब जो तीसरा चार्ज है बच्चों वो ओरिजिन पे प्लेस है पर उसे y एक्सिस में धक्का दिया जा रहा है, तो वो y एक्सिस में जाके कुछ डिस्टेंस y कवर कर रहा है जो y डिस्टेंस क्या है, a डिस्टेंस से बहुत छोटा है. तो ओरिजिन से प्लस q चार्ज के लिए यहाँ पे डिस्टेंस है a, दूसरे साइड में भी डिस्टेंस है a, और नेगेटिव q बाई 2 जो चार्ज है वो y डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि Q और माइनस q बाई 2 चार्ज के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा. सिमिलरली दूसरे Q और माइनस q बाई 2 के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा. अभी बच्चों ये जो दो फोर्सेस हैं इनकी वैल्यू क्या है पहले निकाल लेते हैं. F इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू बाई 2 divided by distance. How much is the distance in between q and minus q by 2? It is equal to a square plus y square का root over. So a square plus y square का root over का square. This is both these forces. This force F and this force also. So these two forces have the same magnitude, but they are in the different direction. So what we can do here, we can take the components. So if we resolve this force into its two components, so one component is along this direction and one component is along this direction. Similarly for F dash force, one component is along this direction and the other component is along this direction. Let this angle is theta, then we can say this angle is also theta. Similarly, since distances of q to minus q is equal, so theta angle will be same. This angle is also theta and this angle is also called theta. Then what we can see here, the F cos theta component and F dash cos theta component are oppositely directed. So since F magnitude is equals to magnitude of F dash, the cos theta components cancels each other. Now what the resultant will be? Then the resultant will be along the negative y direction. That will be F dash sin theta plus F sin theta. Or I can say since both have the same magnitude, it will be 2f sin theta along y axis. So the resultant of forces acting on negative q by 2 will be equal to 2f sin theta, which is equal to 2 times of k q square divided by 2 times of a square plus y square times sin theta. Now the sin theta component we can directly find out from the triangle. Sin theta is p upon h, So sin theta will be equal to y upon root over of a square plus y square.
So sin theta is equal to y divided by root over of a square plus y square. Then putting the value of sin theta in this will get k q square y divided by a square plus y square to the power 3 by 2. Now we can apply the formula that this force is towards negative y axis. So this force is against the displacement y. So I can take the negative sign here. So net force is equal to negative k q square y divided by 2 a square plus y square to the power 3 upon 2. Now we can use the value that y is very less than a. So the term y square could be negligible compared to a square. So f net becomes k q square y divided by 2 a square to the power 3 by 2, which is equal to k q square y divided by 2aq negative. So it is very clear that the force here is directly proportional to negative of y. So I hope it is clear, students. Now we will go for the next question. So this is the next question, students. क्या है question? A particle A having charge 2 into 10 to the power negative 6 coulomb and a mass of 100 gram is placed at the bottom of a smooth inclined plane of inclination 30 degree. Where should another particle B will be placed on the incline so that it will remain in equilibrium? Given that the charge of A is equal to charge of B and the mass of A is equal to the mass of B. So here we can see that according to the question, there is an inclined plane and the plane of inclination have an angle of 30 degree. Now the charge A is placed at the bottom of this. Here the charge which is, let me take it as Q of A. Now another charge B, particle B is placed somewhere on the incline. Now it contains the charge QB and we got the first expression here, QA is equal to QB. Let I am taking both of them as Q. और क्या दिया गया बच्चों? दोनों का मास सेम है, तो मास कितना है? Q कितना है पहले बोल दो. Q is equal to 2 into 10 to the power minus 6 coulomb और मास ऑफ A इज इक्वल टू मास ऑफ B, वो कितने हैं? 100 ग्राम. तो मैं लिख सकता हूं 0.1 kg. अभी क्या है? अभी बॉडी B नीचे क्यों आ रहा है? हम लोग अगर बॉडी B के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, सो द वेट ऑफ द बॉडी B विल एक्ट डाउनवर्ड. ये है वेट. अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा. इट मीन्स this component of mg perpendicular to the plane will be mg cos theta or mg cos 30, and this component which is along the inclination downward will be mg sin theta or mg sin 30. Now one thing, students, अगर mg sin 30 डाउनवर्ड से, सो mg sin 30 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट. अगर उस बॉडी के मूवमेंट को हम लोगों को रोकना है यानी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू अप्लाई ए सर्टेन फोर्स अगेंस्ट mg sin theta, and this force is nothing but the force of electrostatics. The force of electrostatics between the charged particle A and B act along the line joining the two charges. So this is the distance along which
the force of electrostatics will act. Then we can write for equilibrium of particle B, mg sin theta must be equal to f of E, that is equal to k q square by r square. Now what is mg sin theta? Here m is 0.1 kg times g is 10 times sin 30 is 1 by 2 is equal to k is 9 into 10 to the power 9, q square is 2 into 10 to the power minus 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और ये r स्क्वायर हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, r स्क्वायर 0.1 इंटू 10 इज 1 इंटू 1 बाई 2, सो 1 बाई 2 2 ऊपर चला गया, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 12 which is equal to 72 into 10 to the power minus 3, that is equals to 0.072. Then r will be equal to root over of 0.072 meter. This is a question from HCB. वर्मा साहब की किताब से उठाया हुआ ये क्वेश्चन है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन मजा आया होगा। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर ये लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस बच्चों। टू आइडेंटिकल पीथ बॉल्स ईच कैरिंग ए चार्ज q was suspended from a common point by two strings of equal length. Find the mass of each ball if the angle between the strings is 2 theta in equilibrium. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना। तो क्या बोला गया है बच्चों यहाँ पर कि एक रिजिड सपोर्ट से दो स्ट्रिंग एक ही साथ लटकाए गए हैं और उन दोनों में दो पीथ बॉल्स अटैच्ड हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो दो पीथ बॉल्स अटैच्ड हैं उन दोनों का मास पूछा है, वो इक्वल है तो उन दोनों का मास भी इक्वल होगा और उन दोनों में सेम चार्ज है, इसमें भी क्यू चार्ज है और इसमें भी क्यू चार्ज है। तो हुआ क्या है, फाइनली इन दोनों के बीच में एंगल है 2 थीटा। तो पूछा है कि मास इन दोनों का कितना होगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं किसी भी एक पिथ बॉल को कंसिडर करूं तो इस पिथ बॉल के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहला जो फोर्स है वो है इसका वेट, जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा। दूसरा जो फोर्स है वो है टेंशन दैट विल एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। अभी जो तीसरा फोर्स है जो इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है बच्चों, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू द अदर चार्ज्ड स्फीयर। तो और एक फोर्स इधर लगने वाला है जो है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहां पे जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है बच्चों वो कितना होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी इक्वल टू k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस इन बिटवीन द टू स्फीयर्स, ये डिस्टेंस है r। देन स्टूडेंट्स व्हाट आई कैन राइट, if this is the string L and both these masses are equal, then this angle will also equal to theta and this angle will be equal to theta. If this angle is theta और ये साइड है L, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा L sin थीटा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी L sin थीटा।
तो टोटल डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं, टोटल R विल बी इक्वल टू 2L साइन थीटा। अभी बच्चों यहां पे देखो बच्चों, अगर हम लोग टेंशन को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो टेंशन के ये जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक होगा, अभी ये एंगल T है, ये एंगल थीटा है, तो यहां पर अगर हम लोग एंगल लेंगे तो ये एंगल भी थीटा आएगा, तो ये एंगल को हम लोग थीटा ले रहे हैं, तो ये कंपोनेंट बनेगा T cos थीटा और ये कंपोनेंट बनेगा T sin थीटा। तो अगर ये पीथ बॉल इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसके ऊपर एक्ट करने वाले सारे फोर्सेस जीरो हैं। तो सारे फोर्सेस जीरो है, यानी T sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। और T cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। देन आई कैन राइट T sin थीटा इज इक्वल टू Fe एंड T cos थीटा इज इक्वल टू mg। अगर दोनों को डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा बच्चों? tan ऑफ एंगल थीटा विल बी इक्वल टू f ऑफ E अपॉन mg। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, बहुत जगह पे आप लोगों का काम आएगा, याद रखो। tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू f ऑफ E बाई mg, ये हम आगे भी यूज करने वाले हैं। तो यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि mg tan थीटा इज इक्वल टू f ऑफ E और m इज इक्वल टू एफ ई बाई जी tan थीटा। तो यहां पे मास क्या आएगा बच्चों? एफ ऑफ ई कितना है? मैंने पहले से ही बोल रखा है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू जी tan थीटा। तो यहां पे जो r का स्क्वायर है उसके जगह पे मैं लिख सकता हूं 2l sin थीटा का स्क्वायर। तो m का वैल्यू हो जाएगा बच्चों के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी tan थीटा। और अगर ये tan थीटा को मैं हटाना चाहूं यहां से तो उसे उसके जगह पे रिप्लेस कर सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन 4l स्क्वायर जी साइन क्यू थीटा। दिस इज द मास ऑफ ईच पीथ बॉल। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज कर सकते हैं। अभी बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। हमें पता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? 1 बाई आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं फोर्स और आर के बीच में एक प्लॉट ड्रॉ करूं तो वो मुझे कुछ इस तरह का दिखेगा। यहां पे मैंने एक्स एक्सिस में आर लिया हुआ है और वाई एक्सिस में लिया हुआ है एफ। तो इस ग्राफ से हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि व्हेन R becomes infinity, the force becomes 0, and when R tends to 0, the force becomes infinity. पर in actual ये सच नहीं है। तो अगर हम लोग फेम्टोमीटर के ऑर्डर में चले जाएंगे, यानी 10 टू द पावर -15 मीटर, यानी न्यूक्लियर बाउंड्री के अंदर चले जाएंगे, तो वहां पे हमें पता है बच्चों न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन मिलजुल के रहते हैं। एक से ज्यादा प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, पर एक्चुअल में अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए।
पर वहां पे वो दोनों एक दूसरे को रिपेल ना करते हुए एक दूसरे के पास जुड़ के रह सकते हैं। तो ये कैसे हो रहा है बच्चों? अगर दो प्रोटॉन्स एक दूसरे के पास जुड़ के रह रहे हैं, इसका मतलब है वहां पे और कोई फोर्स है जो कि डोमिनेंट है ओवर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उन्हें तोड़ने में लगा हुआ है, उससे ज्यादा कोई और फोर्स है जो उन्हें जोड़ने में लगा हुआ है। उस फोर्स को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोल रहे हैं। तो न्यूक्लियर बाउंड्री के अंदर न्यूक्लियर फोर्स जो है दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो वहां पे हम लोग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को एफिशिएंटली एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। सो द प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज डोमिनेटेड बाय द न्यूक्लियर फोर्स विद इन द न्यूक्लियर बाउंड्री। तो बाहर क्यों नहीं दिखता? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स की जो बाउंड्री है, जो रेंज है, वो बहुत छोटा है। न्यूक्लियर बाउंड्री के अंदर ही वो काम करता है। इस वजह से बाहर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पर 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस में चले जाए, तो कोई प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस में चले जाएं, बहुत छोटे डिस्टेंस में चले जाएं, तो वहां पे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे rather than the force of electrostatics. So in the range r tends to 10⁻⁻15 meter, that is within the nuclear boundary, nuclear force dominates over force of electrostatics. उसी तरह से अगर हम लोग बच्चों 10⁻18 मीटर से ज्यादा दूरी तक चले जाएं, यानी if r is greater than 10⁻18 meter, then also the effectiveness of force of electrostatic is less. So in the region of 10⁻⁻ beyond 10⁻⁻15 meter to 10⁻18 meter, उस रेंज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के प्रेजेंस को हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। So I hope you have understood this concept. Now we'll proceed to the electric field. अगर बच्चों चिंपू थकेला रास्ते में जा रहा हो तो झंडू हटेला उसे मारेगा नहीं। जब तक चिंपू थकेला झंडू हटेला के इलाके में ना घुसे। पर एक बार जब चिंपू थकेला झंडू हटेला के इलाके में घुस जाता है तो चिंपू हटेला के ऊपर मार की बारिश होने लगती है। तो क्या बोल रहे हैं सर? ये क्या बोल रहे हैं आप? यहां पे चिंपू हटेला झंडू ठकेला कहां से आ गए? बच्चों मैं यहां पे चार्ज की बात कर रहा हूं कि दो चार्ज के बीच फोर्स ऐसे ही एक्सपीरियंस नहीं होता। यानी एक चार्ज अगर दूसरे चार्ज के इलाके में घुसे तो वहां पे जाके वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहां पे इलाका, जिस इलाके में एक चार्ज दूसरे चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उस इलाके को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि Q0 हमारा एक चार्ज है जो कि Q चार्ज के वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एट ए डिस्टेंस r, तो इसका ये मतलब है कि Q0 चार्ज Q चार्ज के इलाके में घुस गया है, Q चार्ज के फील्ड में घुस गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या बनेगा बच्चों? इट इज द स्पेस मॉडिफाइड अराउंड ए चार्ज वेयर द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्यू टू दैट चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड। तो बच्चों फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0 और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ Q0 के बीच में क्या रिलेशन है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0 इज इक्वल टू Q0 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पॉइंट। यू कैन सी द रिलेशन F फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0 इज इक्वल टू Q0 टाइम्स E। फोर्स बिटवीन Q एंड Q0 इज इक्वल टू Q0 divided by distance है r का square. So the electric field experienced by Q0 will be equal to force by Q0, that is equal to
के क्यू बाई आर स्क्वायर और इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर. So this is the formula for electric field due to a charge q. So here q is the generator और q is the creator of electric field. तो q को क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज. q0 is the charge which experiencing the electric field. इसे बोलेंगे टेस्ट चार्ज. Then I can say the definition of electric field at a point. The electric field at a point can be defined as the force experienced by a unit positive charge placed at that point. So if q0 is equal to 1, E vector is equal to F vector. So this is the definition of electric field due to a point charge. तो बच्चों अभी अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर है कि एक वेक्टर, तो ऑब्वियस आंसर है कि फील्ड है यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है. जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड था उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. तो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा. इसका डायरेक्शन कहाँ है बच्चों? तो हम देख सकते हैं एक्सप्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू0. और यहाँ पे जो Q0 है वो एक स्केलर है. इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये विल बी इक्वल टू फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन. तो फोर्स जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर. तो व्हाट इज इट्स यूनिट? इट्स यूनिट विल बी फोर्स बाई चार्ज दैट इज न्यूटन पर कूलम. और इसका डायमेंशन क्या है बच्चों? इसका डायमेंशन विल बी इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन हो गया m1 L1 T -2 डिवाइडेड बाई चार्ज का डायमेंशन हो गया A1 T1. सो इसका डायमेंशन हो जाएगा m1 L1 T -3 A -1. अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो the direction of force on the test charge will always be repulsive. तो टेस्ट चार्ज के ऊपर इसका जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, अवे फ्रॉम इट लगेगा. तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड. अगेन स्टूडेंट्स, अगर हम लोग नेगेटिव पॉइंट चार्ज ले रहे हैं तो टेस्ट चार्ज के ऊपर इसका जो फोर्स लगेगा वो होगा अट्रैक्टिव, क्योंकि टेस्ट चार्ज इज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव, मैंने बोला अभी. तो फोर्स अगर अट्रैक्टिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज रहेगा. इसी के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड. So this is the direction of electric field for a point charge. और अगर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल, यूनिडायरेक्शनल एंड इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइंस. तो अगर बच्चों मल्टीपल चार्जेस आर प्रेजेंट इन ए सिस्टम देन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेस. तो बच्चों हमें अगर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू प्लस Q1 चार्ज एंड प्लस Q2 चार्ज, तो मैं बोल सकता हूं Q1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है U1 और Q2 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है U2. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी E which is equal to E1 का E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर. तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन, तो इसका रिजल्टेंट इन बिटवीन E1 एंड E2 निकलेगा. तो ये तो थी किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात. तो अभी अगर मैं पूछूं मीडियम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करता है कि नहीं, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई Q0. देन
electric field in vacuum will be equal to F vacuum by Q0. Electric field in a medium will be force in that medium by Q0. Then electric field vacuum by electric field in the medium is equal to force in vacuum by force in that medium, that is equal to epsilon r. So electric field is also maximum in vacuum and minimum in conductors, that is electric field is 0 inside conductors. Again, electric field also inversely depends on r square. So if we plot a graph between electric field and r, so the graph will be a decreasing graph. But if we plot between electric field and 1 by r square, जो कि एक बार सवाल आया था सीबीएसई के एग्जाम में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और 1 बाई आर स्क्वायर के बीच में अगर हम लोग प्लॉट करें तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर. तो बच्चों आज के क्लास का ये रहा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन बेस्ड है जो लास्ट एग्जाम्पल हमने किया था फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पेंडुलम वाला, उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करते हुए. एंड द क्वेश्चन इज ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम and carrying a charge of 2 into 10 to the power negative 8 coulomb is at rest in a uniform electric field of 20 kilovolt meter inverse. Find the tension in the thread. तो अगर पेंडुलम इक्विलिब्रियम पोजीशन में है बच्चों, तो वहां पे लेट द पेंडुलम इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल. सो अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी थीटा होगा. पेंडुलम के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेट mg डाउनवर्ड एंड द टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग. अगर हम लोग टेंशन को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं तो एक हो जाता है t sin थीटा ऑपोजिट टू f ऑफ e और एक हो जाता है t cos थीटा ऑपोजिट टू mg. और यहां से हमें यह पता लग जाता है बच्चों f ऑफ e which is equal to qe will be equal to t sin theta in equilibrium. Again t cos theta is equal to mg in equilibrium. तो यहां पे हमें टेंशन निकालना है, तो टेंशन के लिए क्या करेंगे, T विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस विल बी इक्वल टू एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर का रूट ओवर. ये और एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों. तो एफ ई क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 8 multiplied with 20 into 10 to the power 3 किलो में है, तो 20 into 10 to the power 3 वोल्ट मीटर इनवर्स. सो दिस मच न्यूटन दैट इज इक्वल टू 2 into 2 20, तो 40 into 10 to the power negative 5 Newton. This is the force. Again, weight acting on the pendulum will be equal to 80 into 10 to the power minus, ये मिलीग्राम है तो ग्राम होता है 10 to the minus 3 kg, तो यहां पे ये हो जाएगा 10 to the power minus 6 kg multiplied with g, that is 10. So this will be equal to 800 into 10 to the power negative 6 or 8 into 10 to the power minus 4 Newton. So the tension will be Fe का स्क्वायर यानी 4 into 10 to the power minus 4 का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर यानी 8 into 10 to the power minus 4 का स्क्वायर का रूट ओवर.
So this will be equal to 16 into 10 to the power negative 8 plus 64 into 10 to the power negative 8 का रूट ओवर, और that is equal to 80 into 10 to the power negative 8 का रूट ओवर. That will be equal to 4 root 5 into 10 to the power minus 4 Newton. This is the tension acting on the string. So I hope you have understood the concepts of electric field very well, and I hope you have enjoyed this class. Thank you everyone. If you like this class, hit the like button, share it among your friends and subscribe it maximum.